السلام علیکم فرینڈ، اس ویڈیو میں آپ کو اسرائیل اور پاکستان کے کچھ ایسے واقعات بتاؤں گا اور کیوں اسرائیل پاکستان سے ڈرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کا رقبہ پاکستان سے بہت ہی چھوٹا ہے، لیکن اس کا دفاعی نظام اتنا مضبوط ہے اور اس کے پاس ایسے جدید ہتھیار ہیں کیونکہ اسے امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے اور اس کے پاس ہائی سے ہائی لڑنے کے ویپن ہیں، لیکن پھر بھی وہ پاکستان سے ڈرتا ہے کیونکہ پاکستان رقبے کے لحاظ سے زیادہ ہے اور اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہیں اور مہارتیں ہیں کہ اسرائیل ڈرتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو ریئیکٹ کر کے دکھاؤں گا اور وجوہات بھی بتاؤں گا کہ اسرائیل اور پاکستان سے ڈرنے کی کیا وجوہات ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دلچسپ معلومات دیکھنے والے سبھی ناظرین کو محمد نبیل کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل اور پاکستان دوست کیوں نہیں بن سکتے۔ اس سوال کا تو مجھے نہیں پتا، مگر پاکستان اور اسرائیل آج سے نہیں بلکہ اپنی پیدائش کے پہلے ہی دن سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور جب بھی موقع ملتا ہے ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ اسرائیل نے بلا شبہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، مگر ہم نے یعنی پاکستان نے اسے بدلہ لیے بغیر بھی نہیں چھوڑا۔ ہم نے بھی اسرائیلیوں پر ثابت کیا ہے کہ ہم بھی اپنی ہی ماؤں کا دودھ پی کر جوان ہوئے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ یوٹیوب اور فیس بک پر لاکھوں لوگ مجھے پہلے سے جانتے ہیں۔ میں پاکستان کا کوئی گمنام سپاہی نہیں، بلکہ اپنے اس چینل پر میں آپ لوگوں کو پاکستان کے گمنام ہیروز کے قصے سنایا کروں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا کہ کس طرح ہم نے اسرائیل کی سرزمین پر جا کر نہ صرف اسے للکارا تھا بلکہ اس کے جہاز بھی تباہ کیے تھے، اور اسرائیل آج تک اس کا بدلہ لینے کو تڑپ رہا ہے۔ دوستو، ہم نے پہلی بار اسرائیلیوں کے سینے میں خنجر اس وقت گھونپا تھا جب عرب اسرائیل 6 روزہ جنگ شروع ہوئی تھی، جسے عرب اسرائیل جنگ 1967 تیسری عرب اسرائیل جنگ یا جنگ جون بھی کہا جاتا ہے۔ مصر، عراق، اردن اور شام کے اتحاد اور اسرائیل کے درمیان لڑی گئی اس جنگ میں اسرائیل نے فیصلہ کن کامیابی حاصل کی تھی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے پہلے تو یمنی حریت پسندوں کے ایک گروہ سے اتحاد کر کے ستمبر 1965 میں امام یمن کا تختہ الٹ دیا، اور اس کے نتیجے میں شاہ پسندوں اور جمہوریت پسندوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ تو صدر جمال عبد الناصر نے اپنے حامیوں کی مدد کے لیے وسیع پیمانے پر فوج اور اسلحہ یمن بھیجنا شروع کر دیا، اور چند ماہ کے اندر یمن میں مصری فوجیوں کی تعداد 70,000 تک پہنچ چکی تھی۔ بلا شدہ صدر جمال عبد الناصر کے اس جرأت مندانہ اقدام کی وجہ سے عرب کے ایک انتہائی پسماندہ ملک یمن میں بادشاہت کا قدیم اور فرسودہ نظام تو ختم ہو گیا اور جمہوریت کی داغ بیل ڈال دی گئی، لیکن یہ اقدام خود مصر کے لیے تباہ کن ثابت ہو گیا۔ صدر ناصر یمن کی فوجی امداد کے بعد اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اب مصر دنیا عرب کا سب سے طاقتور ملک بن گیا ہے، وہ اسرائیل کے مقابلے میں روس پر مکمل بھروسہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو انہوں نے طاقت کے مظاہرے کے لیے ہزاروں فوجی یمن بھیج دیے اور دوسری طرف اسرائیل کو دھمکیاں دینا اور مشتعل کرنا شروع کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جو فوج 1956 سے اسرائیل اور مصر کی سرحد پر تعینات تھی، صدر ناصر نے اس کی واپسی کا مطالبہ کر دیا اور آبنائے عقبہ کو جہاز رانی کے لیے بند کر کے اسرائیل کی ناکہ بندی بھی کر دی۔ اسرائیل نے جو اس وقت جنگ کے لیے پوری طرح تیار تھا اور جس کو امریکہ کی امداد پر بجا طور پر بھروسہ بھی تھا، مصر کی کمزوری کا اندازہ کر کے جون 1967 کے پہلے ہفتے میں بغیر کسی اعلان جنگ کے اچانک مصر پر حملہ کر دیا اور مصر کا بیشتر فضائی بیڑا ایک ہی حملے میں تباہ کر دیا۔ مصری فوج کا ایک بڑا حصہ یمن میں تھا جسے بر وقت بلانا ناممکن تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 6 دن کی مختصر مدت میں اسرائیل نے نہ صرف باقی فلسطین سے مصر اور اردن کو نکال باہر کیا، بلکہ شام میں جولان کے پہاڑی علاقے
और मिस्र के पूरे जजीरा नुमाए सीना पर भी कब्जा कर लिया और मगरबी बैतुल मकदस पर भी इसराइली अफवाज का कब्जा हो गया। हजारों मिस्री फौजियों को कैदी बना लिया गया। रूसी असला और टैंक या तो जंग में बर्बाद हो गए या इसराइलियों के कब्जे में चले गए। अरबों ने अपनी तारीख में इससे पहले कभी इतनी जिल्लत आमेज शिकस्त नहीं खाई होगी और इस हार के असरात से अभी भी अरबों को निजात नहीं मिल सकी। इसराइल के मुकाबले में इस जिल्लत और अमेज शिकस्त के बाद सदर जमाल अब्दुल नासर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उर्दन और सऊदी अरब से मुफाहमत पैदा की गई। शाह फैसल से राब्ता किया गया जिसके तहत मिस्र ने यमन में फौजी मुदाखलत न करने का अहद किया। मिस्री फौजें यमन से वापस बुला ली गईं। मिस्री फौज की हार की एक बड़ी वजह मिस्री फौज की नाअहली और मिस्री फौजी निजाम के नकाइस थे, लेकिन मिस्री फौज और असला की बड़ी तादाद को यमन भेजना भी हार की एक बड़ी वजह हुई थी। मिस्री समुंदर के करीब इसराइली जहाजों ने अमरीकी बहरिया के जहाज लिबर्टी पर हमला किया जिसमें 34 अमरीकी हलाक हो गए। इसराइल और अमरीका ने बाद में इसे गलत फहमी का नतीजा करार दिया, मगर इसके बाद अमरीका ने बाकायदा तहकीकात करने से भी गुरेज किया था। बाज़ मुहक्किकीन का दावा है कि इस हमले का मंसूबा भी खुद इसराइल और अमरीका का था। इरादा यह था कि जहाज डूबने के बाद सारा मलबा मिस्र पर डालकर अमरीका को बराह रास्त इस जंग में घसीट लिया जाएगा, मगर चूंकि जहाज डूबा नहीं था इसलिए मिस्र पर इल्जाम नहीं लगाया जा सका था। अरब और इसराइल की 6 रोजा जंग में पाक फजाइया के हवाबाजों यानी पायलटों ने भी हिस्सा लिया था। पाकिस्तानी हवाबाज उर्दन, मिस्र और इराक की फजाइया की जानब से लड़े थे और इसराइली फजाइया के 3 जहाजों को मार गिराया था, जबकि इनका कोई नुकसान नहीं हुआ था। दरअसल हुआ यह था कि अरब ममालिक ने पाकिस्तान से अपील की थी कि इसराइल ने अचानक हमला कर दिया है और इनके माहिर पायलट नहीं रहे। इस पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर 1 दर्जन से जायद पायलट भेजे थे जिन्होंने दादे शुजाअत दी और इसराइल पर कई कामयाब परवाजें भी की। अरब ममालिक में बमबारी की गर्ज से आने वाले 3 जहाजों को मार गिराया, जबकि इसराइली जमीनी दस्तों को भी ठीक ठाक निशाना बनाते रहे। उन्होंने दर्जनों जासूसी परवाजें करके भी तोपखाने की मदद की, जबकि पसपाई में भी अरब फौज को हवाई मदद देकर महफूज बनाया गया। पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से हिस्सा लेने का मामला छुपा रहने वाला तो नहीं था, इसीलिए इसराइल ने खूब धमकियां दी और फिर वो इस वक्त फाते भी था। 6 रोज तक जारी रहने वाली इस जंग में अरब अफवाज के 21,000 फौजी हिलाक हुए थे, 45,000 जख्मी और 6,000 कैदी बना लिए गए थे, जबकि अंदाजन 400 से जायद त्यारे भी तबाह हुए थे। जबकि इसके मुकाबले में सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक इसराइल के 779 फौजी मारे गए, जबकि 2,563 जख्मी और 15 को कैदी बना लिया गया था। जून 1967 की जंग की हार के नतीजे में गजा यानी फलस्तीन का ये इलाका और जजीरा नुमाए सीना का 24,000 मुरब्बा मील का रकबा यानी 1,08,000 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा भी इसराइल के कब्जे में आ गया। नहरें सुइज बंद हो गई और मिस्र जजीरा नुमाए सीना के तेल के चश्मों से भी महरूम हो गया था। सदर जमाल अब्दुल नासर ने हार की जिम्मेदारी तस्लीम करते हुए फौरन इस्तीफा दे दिया, लेकिन इनका इस्तीफा वापस लेने के लिए काहिरा में मुजाहरे किए गए और सदर जमाल अब्दुल नासर ने अपना इस्तीफा भी वापस ले लिया। इस तरह सदर नासर का इक़्तिदार तो कायम रहा, लेकिन 1967 की शिकस्त के बाद मिस्री फौज की इज्जत खाक में मिल चुकी थी। लोग फौजियों को देखकर फिक्रे कसा करते थे, जिसकी वजह से फौजियों की आम औकात में वर्दी पहनकर सड़कों पर निकलने से भी रोक दिया गया था। लेकिन अरब ममालिक के दिल में इस हार ने आग लगा रखी थी और यही आग एक और जंग की वजह भी बनी, जिसमें एक बार फिर से पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट इसराइल पर बम बरसाने को तैयार थे और इस जंग में अल्लाह ने मुसलमानों को फाते भी बनाया। 1967 की जंग ने मिस्र की मईशत को भी सख्त नुकसान पहुंचाया था। मिस्र की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया नहर सुइज थी, जिसकी वजह से मिस्र को हर साल $9.5 करोड़ की आमदनी हुआ करती थी। नहर के मशरकी किनारे पर इसराइल का कब्जा हो चुका था, जिसके बाद नहर सुइज में जहाजरानी बंद हो गई थी। एक ऐसे मौका पर जब मिस्र को इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए और अपनी मईशत को मजबूत बनाने के लिए भी सरमाए की जरूरत थी, नहर सुइज की आमदनी का बंद होना
बहुत बड़ा तबाहकुन फैसला था, लेकिन सऊदी अरब, कुवैत और लीबिया आड़े हाथों आए। तीनों ने मिलकर $9.5 करोड़ सालाना की अमदाद फराहम करके नहर सुएज की बंदिश से होने वाले नुकसान की तलाफी भी कर दी। जुलाई 1968 में सदर जमाल अब्दुल नासर ने रूस का कामयाब दौरा किया, जिसके बाद रूस ने मिस्र को अज़-सर-ए-नौ मुसल्लह करना शुरू कर दिया। रूस ने पहली मर्तबा जमीन से हवा में चलाए जाने वाले कम फासले के मिसाइल मिस्र को दिए। आवाज की रफ्तार से 1.5 गुना तेज चलने वाले जेट तैयारे और 500 टैंक देने का वादा किया। 3000 फौजी मशीर और फनी माहिरीन भी मिस्र को फराहम किए गए। अरब मुल्कों में सऊदी अरब, कुवैत और लीबिया ने वसी पैमाने पर माली इमदाद भी फराहम की। रूस और अरब ममालिक की इस अमदाद से मिस्र के फौजी नुकसानात की एक हद तक तलाफी भी हो गई और इक्तसादी हालत भी संभल गई। 1968 के अवाखिर में असवान बंद ने भी काम करना शुरू कर दिया। नहर सुएज को मिस्र की मईशत में बुनियादी अहमियत हासिल थी, लेकिन ये नहर 6 रोजा जंग में इसराइली कब्जे के बाद से बिल्कुल बंद हो गई थी। आमदनी के इस जरिए से महरूम हो जाने के बाद मिस्र को सऊदी अरब, कुवैत और लीबिया की इक्तसादी अमदाद पर इन्हिसार करना पड़ रहा था। इस मसले को हल करने के लिए मिस्र के सदर अनवर अस-सादात ने यह पेशकश की कि अगर इसराइली नहर के मशरकी साहिल से वापस हो जाएं, तो नहर सुएज खोल दी जाएगी, लेकिन यह मुतालबा तस्लीम न किया गया, जिस पर मिस्र ने हमले का फैसला कर लिया और पाकिस्तानी पायलट एक बार फिर इसराइल पर आग बरसाने को तैयार हो चुके थे। इस जंग के दौरान पाकिस्तान ने मिस्र और शाम की मदद के लिए 16 पायलट्स मशरिक वस्ता भेजे और 8 पाकिस्तानी हवाबाजों ने शाम की जानब से इस जंग में हिस्सा लिया और MiG-21 तैयारों में परवाजें की। पाकिस्तान के फ्लाइट लेफ्टिनेंट ए-स्टार अलवी योम कपूर जंग में पाकिस्तान के पहले हवाबाज थे, जिन्होंने इसराइल के एक मिराज तैयारे को मार गिराया था। उन्हें शामी हुकूमत की जानब से एजाज से भी नवाजा गया था। इनके अलावा पाकिस्तानी हवाबाजों ने इसराइल के 4 F-4 फैंटम तैयारे भी तबाह किए थे, जबकि पाकिस्तान का इसमें कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ था। पाकिस्तानी पायलट्स ने इसराइली तोपखाने को तबाह करने के अलावा रहनुमाई फराहम करने वाली परवाजें भी की और कई ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जो आज तक इसराइलियों के सीने में अंगारे बनकर बेचैन कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी हवाबाज 1976 तक शाम में मौजूद रहे और शाम के हवाई बाजों को जंगी तरबियत भी देते रहे। अमन की कोशिशों में कामयाबी न मिलने पर मिस्री फौजों ने 6 अक्टूबर 1973 को इसराइल पर हमला कर दिया। मिस्री अफवाज ने नहर पार करके इसराइली फौजियों के मशरकी साहल को तहस नहस कर दिया, लेकिन नहर सुएज को पार करते वक्त 200 पाकिस्तानियों ने अपनी जान का नजराना भी पेश किया था, जिसके बारे में मैं फिर कभी आपको वीडियो की सूरत में बताऊंगा। इस तरह मिस्र ने 27 सालों की कशमकश के बाद पहली मर्तबा इसराइल के मुकाबले में एक ऐसी कामयाबी हासिल की थी, जिसने 1967 की शर्मनाक शिकस्त की जुज़वी तौर पर तलाफी भी कर दी। मिस्री सदर अनवर अस-सादात ने मिस्र का कौमी दिन 23 जुलाई की बजाय 6 अक्टूबर मुकर्रर करके इस शानदार कामयाबी की यादगार दिन बना दिया। 1975 में नहर सुएज बैनुल अक़वामी जहाजरानी के लिए खोल दी गई और इससे होने वाली आमदनी से मिस्र अरब मुल्कों की मुहताजी से आज़ाद हो गया। कहा जाता है कि इस जंग में अगर अमेरिका पसे पर्दा इसराइल की भरपूर अमदाद ना करता तो फलस्तीन का मसला आज हल हो चुका होता। अमेरिका बज़ाहिर जंग में हिस्सा नहीं ले रहा था, मगर इसका त्यारा बरदार बहरी जहाज जजीरा नुमा सीना के शुमाल में बुहेरा रूम में हर तरह से लेस मौजूद था। इसके रडारों और हवाई जहाजों ने इसराइल के दफा के अलावा मिस्र में पोर्ट सईद के पास हजारों इसराइली कमांडोज उतारने में भी रहनुमाई और मदद की थी। इसराइली कमांडोज ने पोर्ट सईद का मुहासरा कर लिया, जो कई दिन तक जारी रहा था। इस मुकाम पर मिस्री फौज तो मौजूद ना थी, क्योंकि इसे जुग्राफियाई लिहाज से कोई खतरा नहीं था। अपने दौरे हुकूमत में जमाल अब्दुल नासर ने हर नौजवान के लिए 3 साल तक मिलिट्री की ट्रेनिंग को लाजमी कर दिया था, जो उस वक्त काम आई थी। पोर्ट सईद के शहरियों ने इसराइली कमांडोज का बड़ी बेजिगरी से मुकाबला किया और उन्हें शहर में दाखिल नहीं होने दिया। फिर अमेरिका, रूस और अक़वाम मुत्तहिदा ने जोर डालकर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 338 के जरिए जंग बंदी करा दी।
इस जंग में इसराइल के 2656 फौजी हलाक हुए थे और 7250 फौजी जख्मी हुए थे। इस जंग में इसराइल के 400 टैंक तबाह और 600 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा था। इसराइल के सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक मिस्री अफवाज ने इसराइल के 102 त्यारे मार गिराए थे। इन त्यारों को मार गिराने में एक बहुत बड़ा हाथ उन पाकिस्तानी पायलट्स का था जिन्होंने इस जंग में अरब की मदद की थी। पाकिस्तानी हवाबाजों का सिर्फ एक यही कारनामा नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे वाकयात हैं जिनका अरब दुनिया आज तक शुक्रिया अदा करती रही है। मैं वक्फे से पाकिस्तान फजाइया के सभी कारनामों की वजाहत वीडियोस की सूरत में आप लोगों से करता रहूंगा। आज की ये वीडियो तो अपने इख्तिताम को पहुंचती है, लेकिन अगर ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीजो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करना हरगिज न भूलिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना हरगिज न भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के जरिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। इसराइल वाले पाकिस्तान से क्यों डरते हैं? हालांकि अब उसको अमेरिका की भी सपोर्ट है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान से डरते हैं। और दूसरे कई ममालिक की सपोर्ट है, जैसे फ्रांस हो गया और यूरोपीय ममालिक हो गए, तो वो सपोर्ट करते हैं इसराइल को, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान से डरता है क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत है और इसे कई तरीके से महारत हासिल है। तो इसी वजह से ये इसराइल वाले पाकिस्तान से डरते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।